હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ કે જે ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમની અંદર આવે છે. અને આ સબ્જેક્ટની અંદર અત્યારે જે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે એ છે યુનિટ નંબર 3, ટ્રિગોનોમેટ્રી મીન્સ ત્રિકોણમિતિ. હવે આ યુનિટની અંદર આપણે મોસ્ટલી બધા જ ટોપિક જે છે એ ડિસ્કસ કરી લીધા છે અને એના બેઝ પર એક્ઝામ્પલ પણ જોયા છે કે જે જીટીયુ એક્ઝામની અંદર પૂછાયા હતા. હવે આજથી આ વિડીયોથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આ યુનિટ નંબર 3ના એટલે કે ટ્રિગોનોમેટ્રીના બેઝ પર જે એમસીક્યુ પૂછાય છે, મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન, ઓકે, જે એક્ઝામની અંદર આવે છે અને જે આવી ગયા છે એ જ એમસીક્યુ આપણે જોઈશું વન બાય વન, કે જેથી તમારા આખા યુનિટના બધા જ જે કોન્સેપ્ટ છે ये क्लियर થઈ जैसे कोई डाउट हो तो पण तुम्हारा सॉल्व થઈ जैसे, राइट. सो पहला टॉपिक जो हमने देखा था ये यूनिट के अंदर वो आपको याद होगा, तो कौन सा था? हाउ टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन. जो कोई एंगल दिया है आपको, मतलब जो कोई खूणो आप्यो है एने आपणे डिग्री एटले के अंश, अंशमांथी આપણે રેડિયનમાં અને રેડિયનમાંથી અંશમાં કેવી રીતે આપણે કન્वर्ट કરવાનું છે, રૂપાંતર કરવાનું છે, આપણે જોયું હતું. सो सिंपल आपको मैंने बताया था तब कि ये जो पाई है वो एक्चुअली क्या है? रेडियन क्वांटिटी है. ओके, पाई एनो मतलब શું છે? પાઈ ક્યાંય પણ આવે તો તમારે સમજવાનું કે એ જે ખૂણો છે, એંગલ છે, એ સામે આપ્યો છે આપણને રેડિયનમાં, અને પાઈ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 180 ડિગ્રી. ઓકે, પાઈ રેડિયનમાં છે અને એના ઇક્વલ ટુ અંશમાં કેટલી થશે વેલ્યુ એની? 180. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું, પાઈ ઇક્વલ ટુ 180. હવે જુઓ કેવી રીતે આપણે એકબીજાનામાં રૂપાંતર કરવાનું છે ખૂણાનું, મતલબ કે એંગલનું, તે જુઓ. તો જુઓ, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ જીટીયુની અંદર ઓલરેડી આવી ગયો છે, ખૂબ જ ઇઝી છે. શું છે? 4π/9 રેડિયન મતલબ ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક ડિગ્રી. તો આ જે તમને ખૂણો આપ્યો છે એંગલ, એને આપણે સામાં કન્વર્ટ કરવાનો છે ડિગ્રીની અંદર, રેડિયનમાંથી. તો શું કરીશું? જુઓ, 4π/9 આ તમારો ક્વેશ્ચન છે. મેં તમને કહ્યું હતું તેમ તમારે શું યાદ રાખવાનું? પાઈ એટલે કે રેડિયન અને એના બરાબર કેટલા ડિગ્રી થશે? 180 डिग्री. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ओके, तो सी हमें क्या करना है? ये रेडियन में से हमें किस में लाना है? डिग्री में लाना है. तो देखो डिग्री में क्या है हमारे पास? 180. तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 से, और डिवाइड किससे करेंगे? उसके रेडियन से. तो क्या हो जाएगा? पाई. ओके, तो ये हो गया. अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो. ओके, क्या कैंसिल होता है? ये 180 है तो ये हो जाएगा किस तरह से? तो ये 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 की जगह पे लिख सकते हैं 90 इंटू 2, सॉरी, ओके. या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये 9 है ना, तो 9 के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं आराम से. गेटिंग? तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा. किस तरह से? देखिए, तो मैं लिखता हूँ 20 इंटू 9, तो क्या होता है? 180 होता है. तो देखिए ये 9 और ये 9 कैंसल, तो बाकी क्या रहेगा? ये 20 एंड 4, तो 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 80. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 80 डिग्री. गेटिंग? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली. तो जो रेडियन में क्या दिया है 4π/9, वो हमारा डिग्री में क्या आंसर आ जाएगा? 80. तो ये हमारे पास ऑप्शन भी है. देखिए ये 80 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये बी. तो ये हमारा आंसर आ गया. देखो सेम ही अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा क्विक देख लेते हैं वन बाय वन. तो देखिए ये क्या है हमारा, जो मैंने बोला था वो आपको याद रखना है. पाई इक्वल टू क्या याद रखना है हमें? 180. ये दोनों क्वेश्चन जो है 2 और 3 वो जीटीयू एग्जाम में आए हैं. तो मैंने जो बोला था कि पाई इक्वल टू क्या याद रखना है? 180 डिग्री, राइट. चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया है? 540 डिग्री, 540 डिग्री आप्या है.
આપણને જે ખૂણો છે એ શામાં આપ્યો છે હવે ડિગ્રીમાં, એટલે કે અંશમાં આપ્યો છે. એને આપણે શામાં રૂપાંતર કરવાનું છે? રેડિયનમાં. તો જુઓ, જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એ આપણે ફર્સ્ટ લખી દેવાનો આ રીતે 540 ગુણ્યા, હવે આપણે શું કરીએ છીએ ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં, તો જેમાં કન્વર્ટ કરીએ ને તો રેડિયનમાં શું આવે છે જુઓ, રેડિયનમાં શું આવે છે પાઈ. તો આપણે શું કરીશું પાઈથી ગુણીશું અને પાઈ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે 180, તો 180થી આપણે એને શું કરીશું ભાગી નાખીશું. હવે કંઈ પણ કેન્સલ થતું હોય તો કરો, એ તમારો આન્સર બરાબર છે. જુઓ 0 0 કેન્સલ થઈ જશે, પછી શું થશે 18 3 ये 54 है, उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 18 3 बराबर है. 18 तारीख કેટલા થશે તમારા 54. तो जुओ હવે શું થશે, ये 18 कैंसिल, तो ये क्या रहेगा 3 और यहाँ पे ये पाई है, तो आपका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 पाई. तो आ તમારો આન્સર આવી ગયો કેટલો 3 પાઈ. એટલે જ્યારે ડિગ્રીમાં 540 છે તો એને જ આપણે રેડિયનમાં લખવા હોય તો કેટલા લખાશે આપણાથી 3 પાઈ, અને એ ઓપ્શન છે તમારો સી. ખૂબ જ ઇઝી છે, ખાલી તમારે कॉन्सेप्ट क्लियर रखवाना है. चलो बीजो एग्जाम्पल है तुम्हारा को 135. तो मैंने बोला था पाई इक्वल टू आपको क्या याद रखना है 180 डिग्री. सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या है 135, ये किस में दिया है 135 लिखा है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे ऐसा है, तो मतलब ये डिग्री में है, उसको रेडियन में कितना होता है वो लाना है. तो हम क्या करेंगे डिग्री में से रेडियन कर रहे हैं, तो रेडियन जिसमें कर रहा है उसको पाई में, रेडियन मतलब पाई आता है. तो देखिए हम क्या करेंगे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई इक्वल टू डिग्री में क्या बोल सकते हैं 180, तो 180 से हम डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. देखिए 0, तो यहाँ पे एक्चुअली 135 है और 180 है, तो कुछ भी कैंसिल होता है, क्या होता है वो आपको करना है. ये पाई है, वो पाई तो आपका आंसर आएगा ही. ओके, अब यहाँ पे जो है किससे हम मतलब किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करेंगे. तो देखिए ये क्या है 180 है, तो 180 मतलब आप किस तरह से करोगे 45. ओके 45 इंटू 4 हम लिख सकते हैं 180 को. सिमिलरली 135 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 3 लिख सकते हैं. ओके लिख सकते हैं 45 इंटू 2 क्या होता है 90, 90 प्लस 45 करोगे तो आपका 135 होता है. तो देखिए 45 कैंसल, तो रहेगा क्या, देखो ये पाई तो मैंने लिख दिया है, बाकी क्या रहेगा यहाँ पे 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई किया पाई के साथ, डिवाइड में क्या है ये डिवाइड में है 4, तो क्या आएगा 4. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4. ओके, तो बहुत ही ईजी है. देखिए ये इसका आंसर क्या है 3 पाई बाई 4, मतलब ये आपका ऑप्शन बी आया. ये जो तीनों हमने देखे वो G2 एग्ज़ाम में आए हुए थे, बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो G2 एग्ज़ाम में आ गए हैं ना वही हम देखेंगे. तो ये बात हुई रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, सिंपल. હવે જે બીજો ક્વેશ્ચન છે 6 નંબરનો જુઓ, એ શાના આધારે છે જુઓ, પીરિયડ ઓફ क्या है cos ऑफ 2x प्लस 7 इज ब्लैंक. तो देखिए बहुत ही इजी है, आपको मैं पहले बुक में बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी देखा ही है लेकिन मैं आपको बताता हूँ. ये जो पीरियड फाइंड करना है आपको वो किस तरह से करना है वो. ओके मतलब सी. ओके प्रिंसिपल पीरियड लिखा है वही हमारा पीरियड है, मतलब मुख्य आवर्तन. ख्याल आई गयो. तो केवी रीते शोधीशू, तो देखो आपको ये याद रखना है कि साइन, ये जनरल फॉर्म में लिखा है साइन AX प्लस बी, तो ये सारे फॉर्म में है. देखिए AX प्लस बी तो रहेगा, लेकिन ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मतलब कि त्रिकोणमितीय विधियों बदला से साइन आवशे, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक कोई पण आवी सके, बराबर है. तो जुओ एनो आंसर केवो आवे छे 2 पाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब मानांक में ए.
तो આપણો ક્વેશ્ચન શું હોય છે, મોટે ભાગે અહીંયા કોઈ પણ વિધેય હોય છે અને काउंस में શું હોય છે ax प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है वो क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, मतलब ए શું છે एक्स નો સહગુણક છે અને એનો આપણે શું લેવાનો છે માનાંક, એટલે આપણે શું લખીશું અહીંયા માનાંકમાં એ। ઉપર તો તમારે 2π રહેશે, कोना मारे 2π रहसे ये जुओ। मॉड्यूलस ए लिख दिया हमने, कहाँ से लिखा वो पता चला एक्स का कोएफिशिएंट बराबर। एक्स नो जो सहगुणक है एने आपणे शुं नाम आप्युं छे ए, एनो आपणे शुं लेवानो छे मानांक। हवे जुओ साइन होय कॉस कॉसेक अने सेक, तो आपणे शुं लखवानुं छे 2π। एनो जे पीरियड होय छे ने एना विषे आपणे वात करी छे। पीरियड केटलो होय छे आ चारे चार विधेयोनी अंदर आपणे ग्राफ ड्रो कर्या हता बराबर। एमां आपणे जोयुं हतुं के पीरियड कोने कहेवाय। एक कम्प्लीट साइकल जो होय छे एने शुं कहेवाय पीरियड। ए ज साइकल वारंवार पछी रिपीट थती होय छे। ओके, तो जो मुख्य आवर्तन जे छे ए तमारे केटलो होय छे आ चार विधेयोनी अंदर 2π होय छे। आ tan अने cot नी अंदर ए केटलो होय छे पाई, तो त्यां फक्त शुं लखवानुं छे पाई। समझ पड़ी गई। सो साइन देखिए फिर से बताता हूँ, कॉस कॉसेक एंड सेक हो तो आपको ये यूज़ करना है 2π बाय मॉड्यूलस ए, मतलब 2π भाग्या मानांक में ए। अने ज्यारे टेन अने कॉट होय बराबर है, टेन अने कॉट त्यारे ये 2π नी जग्याए शुं लखी देवानुं फक्त पाई। तो आना परथी पण तमारी एक MCQ आवे छे, ए आपणे जोईए छे अत्यारे बराबर। जुओ आज है 6 नंबर नो शू है पीरियड ऑफ, देखो क्या दिया है कॉस ऑफ 2x प्लस 7। तो उनको है ना हम कंपेयर करेंगे किसके कॉस ऑफ ax प्लस b के साथ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए a की। तो x का जो है सहगुणक, मतलब कि x का कोएफिशिएंट हमारा a होता है। तो देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो हमारा a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। और हमारा जो है जो पीरियड का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा कॉस है, तो वो क्या आएगा 2π डिवाइड बाय मॉड्यूलस ए, मतलब मानांक में ए। तो આપણે શું થશે આન્સર 2π ભાગ્યા a ની વેલ્યુ કેટલી આવી આપણી 2, તો એના માનાંકમાં 2 લખી દઉં છું। तो શું થશે 2π बाय मॉड्यूलस 2 का मतलब 2 ही होता है, माइनस हो तो भी वो प्लस हो जाता है मॉड्यूलस में, इसलिए मानांक में होय ने तो ऋण में होय तो पण शुं थई जाय धन। तो मानांक 2 केटला लखाशे आपणाथी ऑलरेडी धन ज छे तो शुं लखाशे 2 लखाशे। तो जुओ 2 2 कैंसल, तो आपणो आंसर केटलो आवशे पाई आवशे। ओके, सो ये जो फंक्शन दिया है कॉस ऑफ 2x प्लस 7, उनका पीरियड क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल पीरियड बोले तो भी यही लिखना है, क्या आ जाएगा पाई। अब वैसा ही एग्जाम्पल और हम देखते हैं। सी ये G2 एग्जाम में आया हुआ है, देखिए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ क्या है कॉस ऑफ 2x बाई 3 प्लस 5। तो देखिए कॉस ऑफ क्या लिखा है 2x बाई 3 प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो x है उसका जो सहगुणक है, मतलब जो कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सो यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 2/3। ओके, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है कॉस है, तो क्या आंसर आएगा 2π बाई मॉड्यूलस a, इतना आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखो 2π बाई क्या आ जाएगा a क्या है हमारा 2/3, तो मानांक में આપણે 2/3 લખીશું। तो मानांक हटावशुं तो पण एवुं ज रहेशे 2/3। હવે આને આપણે બીજી રીતે લખવું તો લખાય इक्वल टू 2π, ये जो न्यूमरेटर में है सॉरी डिनोमिनेटर में जो है मतलब छेद में जो है तमारू पद एने આપણે ઉપર લઈ ગયા ન્યુમરેટર में, तो એનું ઊંધું થઈ જશે ઉલટું। तो 2/3 ની જગ્યાએ શું લખીશ 3/2। तो जुओ અહીં શું થશે 2 2 કેન્સલ, तो आंसर કેટલો આવશે 3π। આ તમારો શું થઈ ગયો प्रिंसिपल पीरियड ऑफ जो भी दिया है ना कॉस ऑफ 2x बाई 3 प्लस 5, उनका ये आंसर आया 3/5। ओके, वैसा ही एक एग्जांपल और है सी साइन का।
देखिए पीरियड ऑफ ये पूछा गया है एग्जाम में, क्या है साइन ऑफ 2x प्लस 3। तो देखो यहाँ पे ये जो x है उसका जो सहगुणक है वो क्या है 2 है बराबर। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो x का कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं a बोलते हैं। तो a इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया हुआ है, गेटिंग। और यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन है तो क्या आएगा 2 पाई बाई मॉड्यूलस a आएगा इसका आंसर, पीरियड का आंसर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई तो है ही और a की वैल्यू क्या है 2 है वो रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 कैंसिल होता है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा पाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी जो पीरियड जो है वो क्या आएगा पाई। अब वैसा ही एग्जांपल और कोई हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये थोड़ा आपको ट्विस्ट करके पूछा है। देखिए ये फॉर्म में नहीं है। देखिए हमने देखा ना 10 ax प्लस बी के फॉर्म में नहीं है। देखो आपको क्या दिया है ओनली 10 3x दिया हुआ है, राइट। तो सी ये b जो है वो एक्चुअली क्या होगा 0 होगा, तो हमें बस इतना ही दिया है। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है मतलब कि x નો સહગુણક કેટલો થશે 3, એટલે કે આપણા a ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે અહીં 3। सो क्वेश्चन आंसर जो है ये किसका है, देखो फंक्शन कौन सा है 10 है। 10 है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा ओनली पाई आएगा। 10 एंड कॉट में क्या आता है पीरियड पाई आता है। पाई बाई क्या लिखेंगे मॉड्यूलस a, तो पाई डिवाइड बाई मॉड्यूलस a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे आंसर जो है पाई बाई क्या आएगा 3, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो ये 10 3x का जो पीरियड जो है वो क्या आ जाएगा पाई बाई 3। वैसा ही एक क्वेश्चन है और सी एग्जाम्पल नंबर 11 MCQ नंबर। तो क्या हो जाएगा द पीरियड ऑफ, देखो ये थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है फिर से। क्या दिया है 3 cos 2x। तो देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली हम क्या लिखते हैं ना cos ऑफ ax प्लस b। तो देखिए ये b जो है वो यहाँ पे दिया नहीं है, वो 0 होगा। और मेन बात ये cos के आगे क्या है 3 है, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ पड़ी। परंतु ये આપણને કોઈ પણ રીતે અસર કરશે નહીં, એની અફેક્ટ થશે નહીં આપણા આન્સર પર। એને આપણે જોવાનું જ નથી। કોસની આગળ જે કંઈ પણ હોય 3 હોય 5 હોય ગમે જે હોય એની સાથે આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી। આપણે શું મેઇન શોધવાનું છે एक्सનો સહગુણક। एक्स का जो कोएफिशिएंट वो क्या है 2 है, उसको क्या बोलना है हमें a। सो a इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमें ये जो फंक्शन है वो कौन सा है कॉस है। कॉस है तो हमारा जो है पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई मॉड्यूलस a आएगा, बस यही करना है 2 पाई मॉड्यूलस a की वैल्यू रखो तो क्या आएगी मॉड्यूलस 2, तो क्या आएगा 2 पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे ये 3 cos 2x का जो पीरियड है वो भी क्या आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा ट्विस्ट किया है, यहाँ पे 3 दिया है तो हम क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, गेटिंग। लेकिन उनको इग्नोर करो। मेन जो है यहाँ पे आपका जो x का जो कोएफिशिएंट है वो आप देखिए, गेटिंग। तो चलिए तो अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक हमने देखा है। MCQ जो है वो 6 to 7 देखे, उसमें इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। साइन हो, कॉस, सेक एंड कॉसेक, ये जो 4 जो फंक्शन है विधेय जो है उसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई मॉड्यूलस a। ये a क्या है तो x का कोएफिशिएंट मतलब x નો સહગુણક। सेम जब tan होगा एंड कॉट होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे प्रिंसिपल पीरियड बराबर पाई बाय मानक माई। तो आ 2 वस्तु याद रखवानी એટલે તમને કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આવડી જશે। આ MCQ ની અંદર મોસ્ટલી આવે જ છે અને તમારે વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન તમે ડાયરેક્ટ આન્સર લખી શકો છો આરામથી, બરાબર। બીજું આપણે જોયું ફર્સ્ટ હાઉ ટુ કન્વર્ટ રેડિયન ઇન્ટુ ડિગ્રી એન્ડ ડિગ્રી ઇન્ટુ રેડિયન। તો પાછું તમને બતાવું છું डिग्री टू रेडियन, मतलब मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ। डिग्री टू रेडियन करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा डिग्री में जो भी दिया है, मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ 250 डिग्री इस तरह से। तो आपको रेडियन में करना है तो क्या करना है रेडियन में पाई आता है, रेडियन मतलब पाई याद रखो, पाई बाई क्या कर देना 180।
गेटिंग। तो ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। ये आपको डिग्री दिया है, वो आपको किस में आ जाएगा, पूरा जो आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा, पाई के फॉर्म में आ जाएगा। गेटिंग। यहाँ पे आप कैंसिल करके लिख सकते हो। अब यही चीज़ हम उल्टी कर दे, रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन में आपको कुछ भी नंबर दे दिया, वो मान लो कि 2 पाई दिया है या तो 5 पाई दिया है, चलिए उसको मुझे क्या करना है, ये रेडियन में दिया है देखिए 5 पाई, उसको मुझे डिग्री में करना है। तो क्या करेंगे, डिग्री में क्या आता है, मैंने बोला ना डिग्री मतलब पाई इक्वल टू 180, याद रखो। रेडियन में पाई और डिग्री में मतलब कि अंश माइनस શું કહેવાય છે 180। तो डिग्री में करना तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 180 से करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे पाई, उनका आप लाओ तो आपको डिग्री में आंसर मिल जाएगा। गेटिंग। और एकदम सिंपल सी मेथड में बता रहा हूँ क्या करना है यहाँ पे रेडियन टू डिग्री में, कि पाई હોય ને પાઈ ઇક્વલ ટુ 180 મૂકી દેવું, 5 ગુણ્યા 180, જે પણ આન્સર આવશે એ શામાં આવશે તમારો ડિગ્રીમાં। સમજ પડી ગઈ, એકદમ ઇઝી રીત। આ પાઈ રેડિયનમાં કહેવાય તો એનું ડિગ્રીમાં શું કહેવાય 180, તો પાઈની જગ્યા શું મૂકી દો 180। ओके, तो पाई को 180 से रिप्लेस करो तो आप रेडियन टू डिग्री इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो दो टॉपिक हमने देखे हैं, दो टाइप के एमसीक्यू देखे हैं, वो मोस्टली आप जीटीयू के क्वेश्चन पेपर देखो तो अंदर होगा ही, एक एक मार्क के अंदर ये आता है और बहुत इजी है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम यू कैन गेन द मोर मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में આપણે એની આગળનો ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીશું। ઓકે।